Now we know that if I want to repeat the number of statements or I want to repeat something, then I have to use the loop. जैसे कि for example यहाँ पे suppose star मुझे number of times repeat करना है, then I have to use the loop. But what if I want to repeat this repetition also? यानी ये repetition अगर मुझे फिर से number of times repeat करना है, then comes the concept of nested loop. So जो कि हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. थेरोटिकली तो नेस्टेड लूप आपको सब यानी हर कोई बता देगा कि नेस्टेड लूप इज लूप विद इन अनदर लूप, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर ये आपको जानना है तो यह लेक्चर आपको पूरा देखना होगा. सो अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर लॉजिक. Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the nested loops. If one loop is within another loop, then that loop is called as the nested loop. So many times it is necessary that you want to repeat the repetition also. सो बहुत बार ऐसे होता है आपको रिपीटेशन भी अगर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, देन वी विल बी यूजिंग द नेस्टेड लूप. सो जस्ट फॉर सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर, अगर आपको नहीं समझा है सो सिंपल एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा. सो व्हेन वी विल यूज दिस नेस्टेड लूप, सो कंसीडर आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस लाइन, आई वॉन्ट टू प्रिंट वन लाइन ऑफ 50 स्टार्स. एक लाइन में मुझे 50 स्टार्स प्रिंट करने हैं. सो व्हाट यू विल डू नाउ, सो आइदर यू विल बी राइटिंग दिस printf in double quotation, then you will write the 50 stars. So instead of counting the 50 stars, I will write like this, printf in double quotation single star, and this statement I will be repeating for 50 times. So that means here I am using loop, simple loop. So I is equals to 1, I less than equals to 50 and I plus plus. So we now know that with this printf star will repeat for the 50 times. That means this 50 stars will be displayed. So after printing a single line of star, suppose I want to print on next line. So then I will be using here printf backslash n. So with this single line of 50 stars will be displayed and control will be on the next line. But suppose now I want to print 5 such lines. अब मुझे इसी टाइप के 5 लाइन्स प्रिंट करने हैं या फिर नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करने हैं. कंसीडर करो आई वांट टू प्रिंट द 5 लाइन्स ऑफ सच स्टार्स. That means this loop or this statement I want to repeat for 5 times. इसका मतलब एक, इससे क्या हो रहा है, आपकी एक सिंगल लाइन प्रिंट होगी. सो एक सिंगल लाइन प्रिंट होगी. अभी मुझे कितनी लाइन्स प्रिंट करना है, 5 लाइन्स प्रिंट करना है. सो दैट मीन्स दिस लूप I want to repeat for again and again for 5 times. So therefore I will include this loop within another loop which will repeat for 5 times. ये मुझे 5 बार रिपीट करना है. दैट मीन्स इसको मैं और एक दूसरे लूप में ले लूँगी जो कि कितनी बार रिपीट होगा, आपका 5 टाइम्स रिपीट होगा. सो 5 टाइम्स रिपीट करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिया, ये लूप लिया है फॉर जे. सो दैट आई विल बी रिपीटिंग फॉर 5 टाइम्स. सो दैट मीन्स हियर, यहाँ पे एक लूप के अंदर, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है. सो इफ this structure, if a structure is like this, then it is called as the nested loop. So उसको हम बोलेंगे nested loop. So there may be while statement or do while statement, there may be while within do while or do while within while, for within do while and so on. कैसे भी हो सकता है, लूप कौन सा भी हो सकता है, लेकिन एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है then that is called as the nested loop. So this is the structure of nested loop. So here this for
where j is equals to 1, j less than equals to 5. This loop is the outer loop and this loop is the inner loop. So j वाला लूप आउटर लूप है और अंदर का जो है दैट इज द आइज लूप. So this is the structure of actually the nested loop. So हमेशा nested loop का structure ऐसे ही होगा. So ये है आपका outer loop and this is my inner loop. स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही होगा. इनर लूप आपका पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, आपके आउटर लूप के अंदर. कभी भी लूप का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा. हमेशा आउटर लूप में पूरा का पूरा क्या आ जाता है, आपका इनर लूप आ जाता है. सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द नेस्टेड लूप. सो लेट अस सी हाउ दिस लूप विल एग्जीक्यूट. सो ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है. सो ध्यान से देखो. सो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन विल बी डन. दैट मीन्स पहले आउटर लूप में j की वैल्यू 1 होगी. सो नाउ j इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ j इज इक्वल्स टू 1. j की वैल्यू 1 है, लूप अंदर आएगा यानी कंट्रोल अंदर आएगा. कंट्रोल अंदर आने के बाद i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 50, i प्लस प्लस. So that means this printf star will be executed for 50 times. So after entering the inner loop, firstly this inner loop will be continually executed. ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा. दैट मीन्स i की वैल्यू 1 होगी, स्टार प्रिंट होगा. i की वैल्यू 2 होगी, स्टार प्रिंट होगा. 3 के लिए स्टार, 4, 5, 6, 7 ऐसे पूरे 50 तक ये स्टेटमेंट रिपीट होगा. दैट मीन्स 50 टाइम्स स्टार विल बी डिस्प्लेड. पहली लाइन डिस्प्ले हो गई. नाउ प्रिंटफ \n. सो \n यानी कंट्रोल आपके नीचे लाइन में आ जाएगा. ये है आपका क्लोजिंग ब्रेस ऊपर वाले फॉर का. तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा ऊपर. नाउ j प्लस प्लस. सो j प्लस प्लस यानी j की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 2. सो फॉर j इक्वल्स टू 2 फिर से कंट्रोल अंदर आएगा. फिर से i की वैल्यू 1 से लेके तो 50 तक एग्जीक्यूट होंगी और 50 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, आपका स्टार प्रिंट होगा. सो दैट मीन्स फॉर j इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड लाइन विल बी डिस्प्लेड. अगेन printf \n यानी कंट्रोल नीचे आ जाएगा. फिर से ऊपर j इज इक्वल्स टू 3. j इज इक्वल्स टू 3 के लिए फिर से कंट्रोल अंदर. फिर से i 1 से लेके तो 50 तक रिपीट होगा और 50 स्टार्स प्रिंट होंगे. सो थर्ड लाइन विल बी डिस्प्लेड. अगेन printf \n कंट्रोल नीचे आ गया. फिर से ऊपर नाउ j प्लस प्लस. सो j की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगी. नाउ इट बिकम्स 4. फिर से अंदर आएगा. अगेन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50. दैट मीन्स 50 स्टार्स विल बी डिस्प्लेड फॉर 4th टाइम. printf \n यानी कंट्रोल नीचे. फिर से ऊपर जाएगा. नाउ j प्लस प्लस. सो j प्लस प्लस की वैल्यू j की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 5. फिर से ऊपर अंदर आ जाएगा लूप. i फिर से i की वैल्यू 1 से लेके तो 50 तक. दैट मीन्स दिस विल बी दिस printf स्टार विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 50 टाइम्स. सो यानी 5वीं लाइन प्रिंट हो गई. अगेन printf \n यानी कंट्रोल नीचे लाइन में आ जाएगा. अब ऊपर नाउ j बिकम 6 बट 6 लेस देन इक्वल्स टू 5. कंडीशन इज फॉल्स. सो कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, आपके पूरे लूप के बाहर. सो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दैट मीन्स दिस printf स्टार. सो इनर सबसे अंदर वाला स्टेटमेंट है आपका ये. दोनों लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट है ये. So for each value of j, this statement will or this loop will execute for 50 times. j की हर एक वैल्यू के लिए I varies from 1 to 50. That means this will be executed for 50 times. So that means for I equal to 1, sorry, for j equal to 1, j की वैल्यू 1 है तो i is equals to 1, 2, 3 up to 50. सिमिलरली j is equals to 2 के लिए भी i की वैल्यू 1, 2, 3 up to 50. Similarly for j is equal to 3, then j is equal to 4 and for j is equals to 5. That means this loop
will be executed for 5 multiplied by 50 times. That means 250 times this loop will be executed. This is how the nested loop will work. So let's see one another example for printing tables of numbers from 1 to 30. So मुझे tables print करने हैं 1 से लेके तो 30 तक. So see here now, we have to print the tables of number up to 30. So 1 से लेके तो 30 तक मुझे tables print करने हैं, जहाँ जैसे यानी output should be like this. So first row will be the table of 1, second row will be the table of 2, third row will be the table of 3 and so on. So that means I want to print the tables from 1 to 30. So consider in general I want to print the table of n. सो कंसीडर करो कि हर एक लाइन जो है, लाइन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज n. सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 आई वॉन्ट टू प्रिंट टेबल ऑफ 1. सो n इज इक्वल्स टू 2 आई वॉन्ट टू प्रिंट टेबल ऑफ 2. सो एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय टेबल? टेबल यानी क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल हियर जैसे कि n इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 का टेबल मुझे प्रिंट करना है. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू प्रिंट 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 and so on. So similarly for n is equals to 3 also I want to print 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 and so on. That means in each row I want to multiply n from 1 to 10. हर एक n को मुझे 1 से लेके तो 10 तक मल्टीप्लाई करना है. सो फॉर एग्जाम्पल हियर सपोज n इज इक्वल्स टू 30 है. सो 30 को भी मुझे क्या करना है? 1 से लेके तो 10 तक मल्टीप्लाई करना है. फॉर n इज इक्वल्स टू 4 आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स n फ्रॉम 1 to 10. So for that I will use this loop. Say for example this I want to print values from 1 to 30, tables from 1 to 30. So for that I will use the loop for n equals to 1, n less than equals to 30, n plus plus. So हर एक नंबर जनरेट करने के लिए कौन सा लूप लिया है मैंने? पहला वाला लूप for n equals to 1. अब इसके अंदर हर एक रो में मुझे क्या करना है? देखो 1 से लेके तो 10 तक n को मल्टीप्लाई करना है. सो 1 से लेके तो 10 तक, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस. सो क्यों है 1 to 10 लिखा है? क्योंकि मुझे 1 से लेके तो 10 तक मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? कैसे मल्टीप्लाई करना है? सो प्रिंट एफ वैल्यू, टैब देना है हर एक वैल्यू के लिए, इसके लिए \t. अब प्रिंट क्या करना है? देखो दिस n मल्टीप्लाइड बाय दिस i. सो n मल्टीप्लाइड बाय i. सो दैट मीन्स कंसिडर करो n की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट टाइम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, नेक्स्ट टाइम 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. i की वैल्यू 1 से लेके तो 10 तक वैरी होंगी और वो वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? आपके n के साथ मल्टीप्लाई होंगी. एक टेबल प्रिंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, इसलिए प्रिंट एफ \n. सो एक्चुअली दिस इज द नेस्टेड लूप which is used to print the table from 1 to 30. So let us see how this will work. So first time n की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 1, लूप के अंदर आएगा i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स i की भी वैल्यू होंगी पहले 1. सो प्रिंट एफ n मल्टीप्लाइड बाय i. सो n इज 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स 1 विल बी डिस्प्लेड. नेक्स्ट टाइम i becomes 2. सो n मल्टीप्लाइड बाय i, n की वैल्यू वही है
1 multiplied by 2, so that means 2 will be displayed. Next time I becomes 3, 1 multiplied by 3 will be displayed. Next time I becomes 4, that means 1 multiplied by 4 will be displayed. So n वैसे ही है, i की वैल्यू 1 से लेके तो 10 तक वैरी हो रही है. सो इसलिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 अप टू कहाँ तक लूप जाने वाला है 10 तक. सो दैट मीन्स 1 इंटू 10 विल बी डिस्प्लेड. ओके, ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये लूप. प्रिंटफ बैकस्लैश एन, कंट्रोल नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर, यहाँ से कंट्रोल फिर से ऊपर गया. नाउ n प्लस प्लस, सो n प्लस प्लस यानी n की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 2. सो अंदर आएगा लूप, अब i की वैल्यू फिर से होगी 1. सो दिस टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स 2 विल बी डिस्प्लेड. फिर से ऊपर i की वैल्यू 2, दैट मीन्स 2 multiplied by 2, that is 4 will be displayed. Next time I की वैल्यू 3, so that is 2 multiplied by 3, that means 6 will be displayed. So यानी ये लूप क्या कर रहा है, ध्यान में दो, ये लूप n का टेबल प्रिंट कर रहा है. n की वैल्यू जो है उसको 1 से लेके तो 10 तक मल्टीप्लाई कर रहा है. So 2 into 1, then 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6 and so on. So up to 2 into 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी. So ये लूप खत्म हो गया. प्रिंटफ बैकस्लैश एन, कंट्रोल फिर से वापस नीचे ऊपर जाएगा. नाउ n becomes 3. So n की वैल्यू हो गई 3. So 3 को, n को 1 से लेके तो 10 तक, 3 into 1, नेक्स्ट टाइम 3 into 2, 3 into 3, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5 up to 3 into 10 तक डिस्प्ले होगा. ओके, 3 की वैल्यू हो गया, 3 का टेबल. प्रिंटफ बैकस्लैश एन नीचे, अगेन n becomes 4. अब n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 को 1 से लेके तो 10 तक मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स 4 का टेबल डिस्प्ले होगा. सो ऐसे चलते रहेगा. नेक्स्ट टाइम 5, 6, 7 एंड सो ऑन. सो यानी आपकी वैल्यू को कहाँ तक, आपके 30 तक टेबल्स पूरे इससे डिस्प्ले हो. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द टेबल्स फ्रॉम 1 to 30 यूजिंग द नेस्टेड लूप. So let us do it practically now. So this is the same program I have explained you. So this is the loop which I have explained just now. So only here I have to declare the variables and follow the program structure. So let us run the program. So see here, the values tables from 1 to 30 are displayed here. So if I want to print the numbers or tables up to 50, then I have to simply change here the value 50, or if I want to print the value of tables up to 25, so then I'll make the change as here. So here I'll use the condition n is less than equals to 25. So let us run this program now. So see here, tables up to 25 will be displayed. So with this I consider that you now know what is mean by the nested loop and how it should be used in the program. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.